हेलो फिफ्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल यू ऑल आर फिट एंड फाइन. You all are well? Yes, very good student. So students, welcome back to the video classes at Little Angel School at home, and this is Poonam Bhate from Little Angel School. As you know that I am your computer teacher. Yes? Okay. So every day you would be attended the computer online video class and learn about that topic which I discussed in this video class. Okay. So make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attended the class. So students, please take next 5 seconds to keep your book ready. Yes, 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes, I know very well you are very good students और आप हमेशा जल्दी से रेडी हो जाते हैं. Yes or no? Yes. So today we are going to cover the day 2 for the revision of chapter number 2. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 की डे 2 कवर करने वाले हैं. क्लियर है? नाउ तो लेट्स कम विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2. क्लियर? Student, this is the chapter name and this is your chapter number 2 name, that is the generation of computer. ठीक है, generation of computer in which we already discussed the first generation of computer in the previous class. हमने previous video classes में पहला टॉपिक, इसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है day 1 वीडियो में. ठीक है, now in this video we further revise the next remaining part for this chapter. Okay. So students, we will learn about these topics, and these topic your computer textbook has been covered about these topics. ठीक है, this is the computer textbook, your computer textbook. ठीक है, so in this slide some topics are here. So we already covered the first topic and the second topic, that is introduction part and the first generation computer which is used in 1940 to 1956. Okay, we already covered these two topic in the last video, that is the day 1 video. हमने day 1 video में ये दोनों टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हमने day 1 में कवर कर लिया था, रिवाइज कर लिया था. नाउ in this video we will learn about the second generation computer. ठीक है, we are going to revise the second generation computer. फिर आज हम इस day 2 वीडियो में second generation computer के बारे में पढ़ेंगे. तो let's revise the second generation computer. So student, this is our today topic, that is the second generation computer which were used in 1956 to 1964. Second generation computer were used between 1956 to 1964. This is the development time for second generation computer. So you have to learn, first of all you have to learn the year for the development of second generation computer. क्लियर? ये आपकी ईयर दे रखा है जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जब इसमें डेवलप हुआ था, तो आपको इसको लर्न करना है. ठीक है, सो लेट्स रिवाइज दिस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इन डिटेल. क्लियर? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर यूज्ड बिटवीन 1956 to 1964. आई ऑलरेडी टोल्ड. मैंने आपको पहले ही बताया है 1956 to 1964 में ये डेवलप हुआ था. हैव यू सीन दिस टाइप्स ऑफ पिक्चर्स? आप ये कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, तो हम इन्हीं के बारे में आज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये ही टेक्नोलॉजी है जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी. क्लियर है? नाउ ओके, सो इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वर सोल्डर्ड टू सर्किट बोर्ड. एक सर्किट बोर्ड है, उस पर होता था, उसमें ट्रांजिस्टर सोल्डर्ड होते थे. ठीक है, अटैच्ड होते थे. तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई इसमें? फर्स्ट जनरेशन में हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की थी वैक्यूम ट्यूब. नाउ इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वर यूज. ठीक है, आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब वर बिग इन साइज एंड हैवी इन वेट.
ट्रांजिस्टर जो हैं वो उनसे छोटे हैं, ठीक है। आपने इस टाइप के कुछ डिवाइस कुछ देखे होंगे आपने डिवाइसेस में अटैच किए हुए, ठीक है। तो दीज आर द ट्रांजिस्टर्स, ठीक, which were soldered to the circuit board. Some features of second generation computer are as follows. हम इसमें कुछ फीचर्स होते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, उसके फीचर्स हम पढ़ते हैं, चलिए। सो लेट्स कम इन द फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। द फर्स्ट फीचर्स, दे वर स्मॉलर, चीपर एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, विच वर वेरी बिग इन साइज एंड हैवी इन वेट। और ट्रांजिस्टर हम सेकंड जनरेशन में यूज़ करते थे, जो हमारी वैक्यूम ट्यूब से साइज़ में छोटे होते थे और वेट में लाइट होते थे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं इन टेक्नोलॉजी को, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, बिकॉज वी यूज़ द ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, सो दे वर स्मॉलर, चीपर, क्योंकि छोटे होंगे तो चीपर भी होंगे और फास्टर भी होंगे दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। जब छोटा है तो काम भी उतना ही फास्ट करेगा और उतना ही चीप होगा, मतलब सस्ता होगा हमारा एज कम्पेयर एज वैक्यूम ट्यूब से, ठीक है, एज कम्पेयर एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, क्लियर। नाउ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सॉरी सेकंड फीचर्स इज input were given in the form of punch card and printouts were received as output. इसमें भी हम जो इनपुट देते हैं, उसमें भी हम जो इनपुट हम दे रहे थे वो पंच कार्ड एंड पेपर टेप से दे रहे थे, ठीक है। इसमें भी हम जो इनपुट देंगे सेम एज पंच कार्ड के थ्रू हम इनपुट इसमें प्रोवाइड करते हैं और हमारा प्रिंट आउट की फॉर्म में आउटपुट हमको मिलता है, ठीक है। आई रिपीट, पंच कार्ड के थ्रू हम अपना इनपुट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में प्रोवाइड करते थे और प्रिंट आउट कॉपी के थ्रू हमको आउटपुट, अपना इनपुट का आउटपुट हमको मिलता था, क्लियर है। इनपुट वर गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स वर रिसीव्ड एज आउटपुट, गेट इट, क्लियर। उसमें आउटपुट हम सिर्फ इनपुट देते थे, लेकिन यहाँ हमें प्रिंट आउट की फॉर्म में आउटपुट भी मिल रहा है, क्लियर। Now third is high level programming language like COBOL and BASIC were developed in this generation. अभी आप जब नेक्स्ट 6th 7th में आएंगे तो आप लैंग्वेज पढ़ेंगे बेसिक, विच इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी गई है, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली एंड ओनली मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझ सकता है, विच इज़ द LL, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, क्लियर। सो इन दिस जनरेशन कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक COBOL इज द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड बेसिक वर डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी डेवलप हुई थी, ठीक है। कौन कौन सी डेवलप हुई थी? COBOL एंड बेसिक, क्लियर। कौन कौन सी हुई थी? COBOL एंड बेसिक, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। उसके हमारे एग्जाम्पल थे सिंपल एनिक, यूनिवैक, आई, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल थे। अब एनिक 1401, अब एनिक है एग्जाम्पल, लेकिन वो एडवांस आया उसका 1401, ठीक है। एनिक 1401, IBM 700, CDC 160 एंड IBM 1401। आप याद कर लीजिए, यू रिमेंबर डैट एनिक 1401, IBM 700, CDC 160 and IBM 1401 are some example of second generation computer। ये हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिसमें हम ट्रांजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं, क्लियर है, ठीक है। हमारे कुछ जनरेशन जो भी इस तरह के कंप्यूटर हमारे डेवलप हुए थे, समझ में आया। सो टुडे वी विल रिवाइज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर एंड द फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे वीडियो। नाउ
we will discuss in the third generation computer and other generation computer in the next video classes. Clear students? So students, it's time to homework. You have to learn about the second generation computer with features of second generation computer and with the example of second generation computer. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का होमवर्क आपने कर लिया होगा रिवाइज. अब आपको सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को लर्न करना है, उसके फीचर्स लर्न करने हैं एंड आपको उसके एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं. गेट इट? नाउ स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. ओके, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ. आप हेल्दी रहिए, घर पर ही रहिए और सेफ रहिए. क्लियर? सो हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.